exercise of recap exercise in previous video. So this is the time for study about multiplication of decimal. So in this concept there are three type of multiplication of decimal are given. So which names are? First is multiplication of decimal by multiples of 10, that is 10, 100, 1000, 10,000, etc. Okay, so student, there are first types is multiplication of decimal by multiples of 10, that is 10, 100, 1000, 10,000. So student, these are called the multiples of 10 because I have explained that what is decimal number. Decimal number is a decimal fraction. Decimal number is a decimal fraction in which the denominator is the always multiple of 10 and the multiple of 10 is 10, 100, 1000, 10,000, 1 lakh, 10 lakh, etc. Okay, so these numbers are called the multiples of 10. And second one is multiplication of decimal by whole number, that is 0, 1, 2, 3 and so on. So student, second type is you have to multiply the decimal number by a whole number. Whole number means all the natural number including 0 are called the whole number. And third one is multiplication of decimal by another decimal. Okay, so there are three type of multiplication of the decimal number are given. First one is you have to multiply a decimal by a multiple of 10. Second one is you have to multiply a decimal number by a whole number, and third one is you have to multiply a decimal by another decimal. So keep in mind all these types. You have to solve some question which I have given in exercise number 4.1. So let's start the exercise 4.1. Exercise 4.1, in question number 1 you have to multiply. You have to find the following products. Student, you have to find the following product. Product means it is also you have to multiply. Okay. Question number A is 0.7 into 10. Students, one more thing I want to also say that in type number 1, multiplication of decimal by multiples of 10, it is very easy. If you want to multiply decimal number by any multiple of 10, then it is very easy because there are no any extra calculation for multiplying this number. Why? You have to follow all the step. First step is, student, सबसे पहले आपको क्या स्टेप फॉलो करना है? आपको फॉलो ये करना है कि जो नंबर आपको लिखा है 0 को छोड़ करके, जैसे यहाँ पर देखिए 7 लिखा है ना, तो 7 लिख दीजिए आप ऐसे डायरेक्ट 7 लिख दिया, और जो 10 का मल्टीपल है उसका 0 लिख देना है एज इट इज, ऐसे लिख दिया, ठीक, 70 हो गया, ठीक। अब इसमें देखना है डेसिमल नंबर में कि कितने डिजिट के पहले डेसिमल लगा है। तो यहाँ पर देखिए 7 के पहले डेसिमल लगा है, यानी 1 डिजिट के पहले डेसिमल लगा है। तो यहाँ पर भी आपको वंस प्लेस के पहले आपको
यहाँ पर डेसिमल लगाना है, और 7.0 का मतलब होता है 7। 7.00 लगा दे तो भी 7 आएगा। 7.000 7, 7.4 टाइम्स 0 7, 7.5 टाइम्स 0 इक्वल टू आल्सो 7। सो स्टूडेंट, देयर आर नो वैल्यू ऑफ 0 आफ्टर पुटिंग द डेसिमल। डेसिमल के बाद चाहे जितना आप 0 लगा दीजिए, उसकी वैल्यू में कोई चेंजिंग नहीं होती है। वो एज इट इज 7, वो एज इट इज वही वैल्यू रहती है जो यहाँ पर होल पार्ट रहता है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या मिला हमें? 7। तो ये स्टेप आपको याद रखना है। ठीक है, बहुत ही आसान है, आपको इस तरह से मल्टीप्लाई करने की कोई ज़रूरत नहीं है इस तरह से। लेकिन ये स्टेप तभी आप कर पाएंगे जब आपको ये पहला वाला टाइप किया रहेगा। मल्टीपल ऑफ 10 के लिए ये स्टेप फॉलो करना है। ठीक है, सेकेंड और थर्ड के लिए स्टेप फॉलो नहीं करना है, सिर्फ मल्टीपल ऑफ 10 के लिए स्टेप फॉलो करना है। जैसे देखिए दूसरा क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन इसमें है, बी पार्ट इज 2.85 इंटू 10। बहुत इजी है, मैंने क्या बताया अभी, जो नंबर लिखा हुआ है उस नंबर को एज इट इज लिख देना है। जैसे देखिए यहाँ पर क्या लिखना है आपको, 285 लिखना है, देखा आपने। उसके बाद कितने जीरो है यहाँ पर 10 के मल्टीपल में? 10, तो 10 लिख देना है। ठीक, अब इसके बाद आपको ये देखना है कि डेसिमल जो लगा हुआ है, डेसिमल कितने डिजिट के पहले डेसिमल लगा हुआ है। देखिए 2 डिजिट के पहले डेसिमल लगा हुआ है, 85 लिखा है ना, 2 डिजिट के पहले डेसिमल लगा है। तो यहाँ पर भी आपको 1 और 10 डिजिट यानी कि 2 डिजिट के पहले डेसिमल लगाना है। तो ये आप यहाँ पर डेसिमल लगा देंगे। ठीक, अब मैंने बताया कि डेसिमल के बाद 0 की कोई वैल्यू नहीं होती है, तो आप इस 0 को हटा भी सकते हैं और लिख भी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो यही इसका आपका आंसर हो गया, दिस इज द आंसर। बहुत इजी मेथड है, 10 का मल्टीप्लाई करना बहुत इजी है। देखिए इसका लास्ट क्वेश्चन हम बता रहे हैं, आई 40.758 मल्टीप्लाई बाई 1000। बच्चों बहुत इजी है। पहले क्या करना है मैंने अभी बताया, फर्स्ट स्टेप में क्या करना है, फर्स्ट स्टेप में ये जो नंबर लिखा हुआ है 40.758, इसको विदाउट डेसिमल लिखना है, विदाउट डेसिमल लिखना है। कैसे लिखेंगे देखिए, 4758 ये हो गया ना। और उसके बाद ये देखना है कि 10 के मल्टीपल में कितने जीरो आ रहे हैं, हाउ मेनी जीरो, 3 जीरो, ये मैंने लगा दिया। अब इसमें देखना है कि जो डेसिमल नंबर है उसमें डेसिमल कितने डिजिट के पहले लगा हुआ है। देखिए 1 2 3 डिजिट के पहले डेसिमल लगा हुआ है, तो यहाँ पर भी काउंट करेंगे 1 डिजिट से, 1 10 100, यानी कि 1 2 3 डिजिट के पहले आप यहाँ डेसिमल लगा देंगे। तो देखिए ये क्या हो गया, मैंने अभी बताया, जस्ट बताया कि डेसिमल के बाद 0 की कोई वैल्यू नहीं होती है, देयर आर नो वैल्यू ऑफ 0 पुटिंग द आफ्टर द डेसिमल। ठीक है, तो इस 0 को हटा देंगे तो क्या मिलेगा हमको, 47। यही हो इसका आंसर हो जाएगा, दिस इज द आंसर। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 है, क्वेश्चन नंबर 2 इज बेस्ड ऑन द दिस टाइप। ओके, क्वेश्चन नंबर 2 इज यू हैव टू मल्टीप्लाई द डेसिमल नंबर बाई आ होल नंबर। तो इसको जैसे आप मल्टीप्लाई करते हैं वही उसी तरह से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। देखिए 8 7 जा 56, 5 कैरी, 8 2 जा 16 और 5 21, और 1 डिजिट के पहले डेसिमल लगा तो यहाँ पे 1 डिजिट के पहले डेसिमल लगा देंगे। चाहे तो आप इस तरह से रफ में कर सकते हैं, तो भी आंसर वही आएगा, 8 7 जा 56, वही आंसर आएगा, डेसिमल लगा दिया आपने। ठीक है, तो ये हो गया। तो बच्चों ये मेथड सिर्फ आप याद रखना कि ये जो मेथड मैंने अभी यहाँ पे यूज़ किया है ये सिर्फ 10 के मल्टीपल के लिए ये डायरेक्ट मेथड है। ठीक है, अभी आप इस क्वेश्चन को देखिए, 40.758 इंटू 1000, इसको अगर मल्टीप्लाई करना था तो अगर आप इस तरह से लिखते
तो उतना ही मेहनत करना पड़ता है आपको, जैसे इसमें मेहनत किया गया, ठीक है। लेकिन ये सब नहीं करना है आपको ये ध्यान रखना है कि जो 10 का मल्टीपल है उसमें तो आप ये मेथड बहुत आसानी से यूज़ कर पाएंगे, ठीक है। लेकिन इसमें आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। जैसे देखिए b इज 0.234 इंटू 12, तो इसमें आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा इस तरह से। 2 4s 8, 2 3s 6, 2 2s 4, 2 0 0, 1 4s 4, 3 2 0, 8 6 4 10, 4 3 7 1 8 2 0. How many digits the decimal are given before the digit is 1 2 3, 1 2 3. So here the 0 2 means 0 2 means 2, so we can write 2.808 is the final answer. Okay, now question number 3, A part है। अब question number 3 is based on this third type of multiplication. Okay, it means you have to multiply a decimal number by a decimal number. You have to multiply a decimal number by a decimal number. So we can write 4.5 into 0.8. 8 5s are 40, 4 carry 8 4s are 32 and 4 36, 0 5s are 0, 0 4s are 0. Then we can write 0 6 3. Now we have to put the decimal. How can we put the decimal? First of all, there are both the number are decimal numbers, so first of all you have to count from this place. Here 1, here 2, 1 2. It means you have to put the decimal after 2 before 2 place of number, that is 1 2. It means the answer is 3.60. Okay, question number B is 1.6 into 1.2. So first of all we have to multiply this number by 1.2. 1.6 into 1.2. 2 6 are 12, 1 carry 2 1 are 2 1, 3, 1 6 are 6, 1 1 are 1, 2 6 3 9 1. And student put the decimal. बच्चों डेसिमल लगाने के लिए देखिए दोनों डिजिट डेसिमल नंबर के हैं, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ से काउंट करेंगे, ना कि यहाँ से काउंट करेंगे, 2 से काउंट करेंगे। 2 मतलब 1 और 2, 1 2 यानी कि 1 2 यहाँ पे डेसिमल आप लगा देंगे ऐसे। दिस इज द आंसर। So student, I hope you are understand the concept of how can we multiply the decimal by a multiple of 10, by a whole number and by a decimal number. Okay, so student, the question which I have left today you have to solve by yourself. So this is the today's homework, and thank you very much for being with us. Okay.